conscience. So whenever a crime is being committed with the mens rea, जब कभी भी कोई भी अपराध गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड के साथ होता है तो इसका मतलब उस क्राइम जो एक्ट हुआ है उसके पास पोटेंशियल है सोसाइटल कॉन्साइंस को डिस्टर्ब करता है वो, है ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी व्यक्ति ने जानबूझ के गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड से कोई क्राइम किया है तो सोसाइटी डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर ये तय पता चल जाए कि किसी की गलती से एक्सीडेंट हो गया, गलती से भरे बस में जितने लोग थे एक कार की वजह से सारे लोग गिर गए, लेकिन गलती किसी की भी नहीं थी, सो दैट हैज नॉट गॉट द, अगर आप किसी को गोली मार दो 10 लोगों को तो मतलब वो सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है गलती से बाकी 10, 15, 20 लोग मर जाते हैं तो सोसाइटी उस एक्ट से डिस्टर्ब नहीं होती है। तो इसका मतलब एन एक्ट डन विद द मेंस रिया हैज गॉट अ पोटेंशियल टू डिस्टर्ब द सोसाइटल कॉन्साइंस, राइट। सो आईपीसी क्या करता है, आईपीसी पेनलाइज इसीलिए करता है क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, right? So whenever any crime is being committed, it means that state has failed in its duty to give the protection to its people. That's the law कि भाई in criminal law the case is always between the state versus accused. Why it is so? State is representing society, है ना, and society का ही एक हिस्सा है victim. कभी भी ऐसा नहीं होता कि विक्टिम वर्सेस अक्यूज आपका केस चल रहा है, इट इज ऑलवेज स्टेट वर्सेस अक्यूज। सो स्टेट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द सोसाइटी, सोसाइटी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। सो नाउ इट इज अ स्टेट एंड स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? दिस इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दिस इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो नाउ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को किसी भी क्रिमिनल केस में अक्यूज के गिल्ट को कि भाई whether the accused is guilty or not, so public prosecutor will have to prove the case because since केस को, क्रिमिनल केस को हम प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोसिक्यूशन। सो अब किसी भी केस को, क्रिमिनल केस को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्या? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस को प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई भी डाउट रह जाता है, if there remains a 0.1% also doubt, the benefit will always go to the accused. Got it? So what is a criminal law? Why do we have an IPC? That IPC is a matter of public law. It protects the right in rem. Why? Because crime is considered to be wrong against the society. So whenever any crime is being committed, the society looks down towards that act and society wants justice. Right? That is the society wants justice. So if any crime is committed with the mens rea, with the guilty state of mind, it has got a potential to shake the societal conscience. Right? So now basically the IPC tells that which act is culpable and what is the liability for that culpable act. है ना? अब आप देखिए दो बातों पे हमें जिक्र करना है. Which act is culpable and if it is culpable, what is liability? If it is culpable, then what is the liability? How will you come to know that this act is culpable? आप पहले आईपीसी की किसी भी धारा को पढ़ेंगे, किसी भी सेक्शन को पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं, एक में डेफिनेशन दिया होता है और दूसरे में पनिशमेंट। ठीक है, तो जो डेफिनेशन पार्ट है वो बताता है कि कौन सा एक्ट कल्पेबल है। When the murder is done with an intention, when the murder is done with the knowledge, or when the murder is done with the reason to believe that death will 100% occur. It means that the act which causes the murder was culpable. Right? Act which causes the murder is culpable. So generally we have one section which tells that which act is culpable and if you do that act what will be the liability. The liability is basically the punishment part. Right? So culpability is basically which act is culpable, means that you commit the act and you have committed the act with certain state of mind and that state of mind is punishable. When you see section 300 basically tells that when the act is committed with the intention of causing death, you have a different punishment. Right? But if you see the next para which says that if you have intention to cause, bodily injury which is likely to cause death, you have a knowledge
So intention, knowledge and reason to believe, they are state of mind. Right? You commit the murder. Suppose that you commit the murder. So murder means that intention is what? Intention is a desire to produce a particular consequence. If you intend to kill someone, कैसा एक्ट करेंगे? पैसिव? नो, एक्टिव, जिससे कि आपको ये 100% एश्योर हो कि वो मर जाएगा. Death will 100% be the consequence of my act. So intention, knowledge and reason to believe is a state of mind. In India, we have two concepts, actus reus and mens rea. But you will not find anywhere in the IPC the word mens rea. So we have in India a specific kind of mens rea. That specific kind of mens rea can be gathered from the word voluntarily. हमारे यहाँ मेंस रिया शब्द का जिक्र नहीं है आईपीसी में. वहां पे हम स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेंस रिया को जानेंगे वर्ड वॉलंटरली से. वॉलंटरली डिफाइन है सेक्शन 39 ऑफ द आईपीसी में, जो कहता है कि वॉलंटरली का मतलब होता है इंटेंशन, नॉलेज. आप किसी कंसिक्वेंस को कॉज करते हैं इंटेंशन के साथ, आप किसी कंसिक्वेंस को कॉज करते हैं नॉलेज के साथ, आप किसी कंसिक्वेंस को कॉज करते हैं रीजन टू बिलीव के साथ. राइट आप किसी कंसिक्वेंस को कॉज करते हैं रीजन टू बिलीव के साथ. मैंने आपको बताया कि ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेंस रिया है. मेंस रिया पहले समझिए, दो तरह से वर्ड होते हैं क्राइम में. एक एक्टस रियस में, बहुत बेसिक बात बता रही हूं. आई एम नॉट गोइंग इनटू टेक्निकलिटी ऑफ एनी प्रोविजन, जस्ट आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू दैट हाउ डीप यू हैव टू स्टडी टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर. Since you are going to study from a mentor who has given 16 mains in a lifetime and 6 interviews, right? So I have got a you can say ample of experience lagbhag of every state. So I'll not teach you anything which is not relevant and which is not required for the examination, right? So you have to understand we have two concepts in the crime, actus reus and mens rea. मैं बहुत बेसिक सी बात बताना जा रही हूँ आपको. actus reus and mens rea. What is actus reus? Actus is the, what is reus? Actus is the दो तरह से होता है, एक तो act और एक guilty mind. आप act, mens rea is guilty mind. So actus reus is what? Actus is not a act. मैंने आपको थप्पड़ मारा, एग्जाम्पल, मैंने आपको एक थप्पड़ जड़ दिया. उस थप्पड़ का रिजल्ट क्या है? मेरा मुंह सूजना. अपराध क्या है? मैंने क्या एक्ट किया है? हर्ट. मैंने क्या कॉज किया है? हर्ट कॉज किया है. सो एक्टस रियस इज नॉट द ह्यूमन कंडक्ट ओनली, रादर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज द कंसिक्वेंस. सपोज दैट आपने मुझे मेरा बाल खींचा, ठीक है, आप मुझे मेरा बाल खींच के ड्रैग करके बाहर लेके जाते हैं और बस छोड़ देते हैं. तो कंसिक्वेंस क्या हो सकता है? मेरे बाल अगर निकल गया बहुत सारा तो हर्ट, चोट पहुंचा तो ग्रीवियस हर्ट. अब इसी की जगह ए बी को खींच के ले जाता है और ले जाके नीचे फेंक देता है. तो अब खींचना, लेके जाना, बाल का गिरना, वो सब एक्ट है, लेकिन एक्ट का रिजल्ट क्या है? आखिरी रिजल्ट क्या है? परिणाम क्या है? डेथ. तो एक्टस रियस क्या होता है? नॉट द एक्ट, नॉट द ह्यूमन कंडक्ट, rather the consequences of the human conduct. क्या परिणाम था? ऐसा आपने क्या कर, और वो consequence IPC में punishable होना चाहिए. That consequence must be punishable in IPC. Actus is consequence. Example देते हैं आपको. Consequence of human conduct. एक example सुनिए. देखिए, आप एक्ट करते हैं, क्या एक्ट करते हैं? आप भिखारी को खाना नहीं देते, ठीक है. दरवाजे पे आपके भिखारी बैठा था, आपने भिखारी को खाना नहीं दिया, तो आपने एक्टस तो कर दिया कि भाई मैंने खाना नहीं दिया. उस खाना ना देने से भिखारी मर गया वहीं आपके दरवाजे के बाहर. तो क्या वो एक्टस तो है लेकिन रियस नहीं है? क्यों नहीं रियस है? क्योंकि आईपीसी में वो पनिशेबल नहीं है. आज की डेट में आईपीसी कहीं भी डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि वन हु विल नॉट गिव द फूड टू द बेगर विल बी पनिशेबल अंडर these sections.
So it is very, very important that consequence which you are doing, the consequence of human conduct must be punishable in the IPC, right? So that is basically a actus reus. Clear or not? People watching the class online, can you please message me that whether you are getting something or not? See, I am trying to be little simple. People watching the class online, can you please tell me that whether you are getting something or not? Just you can write one line. Actus reus is that consequence of human conduct. Actus reus is that consequence of human conduct which is prohibited and punishable by law. People watching the class online, you have an option to speak or message Ayushi and others. Right. So now you have seen that the actus reus is that consequences of human conduct which is prohibited and punishable by the law. अब example, for example we have section 300 murder. ठीक है, मर्डर का एक्टस रियस क्या है? डेथ है. अब डेथ चाहे मारने से हो, चाहे स्टैबिंग करने से हो, चाहे मारे भी, स्टैब भी किए, ऊपर से फेंक भी दिए, सीरीज ऑफ एक्ट हो. एक्ट का मतलब एक्ट सिंगल एक्ट, आपने एक बार चाकू मारा डेथ हो गया, एक्ट सिंगल एक्ट और अ सीरीज ऑफ एक्ट. If you go and read section 32 of the IPC, it talks about act includes the illegal omission. See, the offence in the IPC can be made out either by the act or by the illegal omission. Offence in the IPC can be made out either you do the act or you commit the illegal omission. What does it mean? The omission has to be illegal. What is illegal? Offence in the IPC can be made out either by the act or by the illegal omission. Offence in the IPC can either be made by the act or by the illegal omission, right? What is illegal? Act तो समझ में आ गया कि आपने कुछ किया, human conduct which causes the offence. What is illegal omission? नहीं, illegal omission. Illegal, as normal अगर लेमैन भाषा में समझो तो illegal omission. Omission का मतलब आपने कुछ किया नहीं, ठीक है, लेकिन जो आपने नहीं किया वो illegal है. मतलब आपकी एक लीगल ड्यूटी थी, there was a legal duty, right? And what you did, you omitted to do your legal duty. You omitted to do your legal duty. अब you just try to understand. This is a layman language that you were having a legal duty, and what you did, you omitted to do your legal duty. That's a layman language. But in the IPC, it is clearly mentioned in the chapter 2 that chapter 2 of the IPC basically deals with the general explanation, which says that once the thing in the IPC is defined in the chapter 2, that is a general explanation, कोई भी चीज अगर चैप्टर 2 में डिफाइन है तो पूरे आईपीसी में उसका सेम मीनिंग होगा. In the entire IPC it will have the same meaning. So illegal is defined under section 43, which talks about that when something is an offence in the IPC, when something is an offence in the IPC, it is illegal. What is an offence in the IPC? IPC में offence कहाँ से शुरू होता है? 1 to 5 no offence introduction, 6 to 52A is general explanation, 53 to 75 punishment, 76 to 106 general exception. General exception में even if you commit the act but your act is coming into the category, falling into the category of general exception, you will not be held liable. Right? Now next 107 में abatement is defined, 108 में the definition of abater is defined. So in the IPC the offence start from section 109 and it ends to section 511. राइट. सो आईपीसी में ऑफेंस कहां से शुरू होता है? 109 से 511 तक. तो अगर आपने 109 से लेके 511 तक कोई भी एक्ट किया है तो वो क्या है? इलीगल है, क्योंकि वो आईपीसी में ऑफेंस है. क्या है? आईपीसी में वो ऑफेंस है. ठीक. अब मान लीजिए कोई चीज आईपीसी में ऑफेंस नहीं है लेकिन किसी और स्टैट्यूटरी लॉ में वो प्रोहिबिटेड है. जैसे
कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ उठाइए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का मैटर बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में है, और हम स्टैट्यूटरी लॉ उस लॉ को कहते हैं जिसपे कि पार्लियामेंट कानून बनाता है, राइट। वी हैव अ लॉ फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट, राइट। तो स्टैट्यूटरी लॉ में ब्राइब का देना और ब्राइब का लेना बोथ आर पनिशेबल। bribe का देना and bribe का लेना both are punishable. So it is not an IPC, in a IPC it is not punishable in the IPC, but it is punishable in some other statutory law. So that is also illegal. अगर आप वो एक्ट भी करते हैं जो कि आईपीसी में पनिशेबल नहीं है लेकिन किसी और एक्ट में पनिशेबल है, तो ऐसे एक्ट को भी हम क्या बोलते हैं? इलीगल बोलते हैं। तो मतलब समथिंग विच इज एन ऑफेंस इन द आईपीसी इज इलीगल, समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय सम अदर स्टैट्यूटरी लॉ इज आल्सो इलीगल। और तीसरा बात कहता है सेक्शन 43 में इलीगल डिफाइन है कि चलिए मान लीजिए आपने एक ऐसा कार्य किया जो कि ना तो आईपीसी में पनिशेबल है ना किसी और स्टैट्यूटरी लॉ में पनिशेबल है, लेकिन उस एक्ट के करने से सामने वाले को अधिकार मिल जाता है आपके खिलाफ सिविल सूट फाइल करने का। मींस यू हैव कमिटेड अ लॉ ऑफेंस इन कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट। ऑफेंस तो नहीं कह सकते, यू हैव कमिटेड अ सिविल रॉन्ग। एग्जाम्पल, अगर मेरी क्लास चल रही है और कोई भी यहाँ आके गाना बजा देता है स्पीकर चला के, तो मेरा नुकसान क्या हुआ? मेरा नुकसान मेरे डेमो के बच्चे चले गए, राइट, बिकॉज वो मुझे प्राइवेट न्यूसेंस कॉज कर रहा है। अब इसकी वजह से मेरे पास अधिकार है कि मैं इसके खिलाफ, ये इलीगल एक्ट कर रहा है, मैं इसके खिलाफ सिविल सूट फाइल कर लूं। तो तीन चीजों से इलीगल एक्ट बनता है, एक जो आईपीसी में ऑफेंस है, दूसरा वो किसी और स्टैट्यूटरी लॉ में प्रोहिबिटेड है, तीसरा जिसके कारण, जिसके होने से आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल सूट फाइल करने का राइट मिलता है। तो आईपीसी में ऑफेंस कैसे बनता है? आप एक्ट कर दीजिए, ठीक है, एक्ट का मतलब डूइंग एनी एक्ट, that act must be prohibited and punishable, and दूसरा you do the illegal omission. The omission has to be illegal. What is illegal? In the layman language, when you have a legal duty to do something, and what you have done, you have illegally omitted that. For the purpose of the IPC, what is illegal? Illegal has to be defined and understood with respect to section 43. Section 43 talks about something which is an offense in the IPC is illegal. Something which is prohibited and punishable in some other statutory law is illegal. Something not offense, not prohibited, but still you have a right to file a civil suit against any person, means that if another person has committed that act by which you have a right to file a civil suit, it means that that person has committed a illegal act. Right? So we were discussing about the actus reus. I told you that actus reus is a consequences of the human conduct. I told you for every offense, हर offense में, हर offense का actus reus अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर offense का actus reus अलग होगा। सेक्शन 300 का actus reus क्या है? डेथ। अब डेथ चाहे चाकू मारने से, घसीटने से, फेंकने से, कैसे भी हो जाए, बट व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ योर एक्ट? डेथ। So the offense can either be made by a single act or series of acts, but we are only concerned with the consequences, the last result of that act. Are you getting my point? We are only concerned with the last result of my act. So basically 32 of the IPC talks about act includes the illegal omission, and section 33 is very much clear about it, that the offense can either be made out by the single act or series of act. Single omission or series of omission, or partly by act and partly by omission. I'll give you example. आपने किसी को चाकू मारा, एक बार में मार दिया ऐसी जगह कि बंदा मर गया, या पहले मारा पीटा फिर चाकू मारा, अंत में वो मर गया। इलीगल ओमिशन का मतलब होता है आपकी कोई लीगल ड्यूटी थी, आपने नहीं दिया। जैसे हस्बैंड की लीगल ड्यूटी होती है अपनी वाइफ को भोजन देने का, क्या? फूड देने का। हस्बैंड इज अंडर अ लीगल ड्यूटी टू प्रोवाइड द फूड टू द वाइफ, right? That's a legal duty of the husband, and that's also a legal duty of the father to give the that food and shelter to the minor kids, and the father neglect to provide that means he has done an illegal omission because it was his legal duty, right? So now what did the father do? What did the husband do? He did not provided the food to his wife. So what he did? He did a illegal omission. Example, he did a illegal ओमिशन। पहला, इसने 7 दिन तक नहीं दिया खाना या 10 दिन तक खाना नहीं दिया, साथ ही साथ मारता था। क्या करता था? ही यूज्ड टू बीट हिज वाइफ। तो ये बीट क्या है? बीटिंग इज व्हाट? एक्ट। बीटिंग इज एक्ट। अब देखिए 7 दिन बाद वाइफ की डेथ हो जाती है, ठीक,
7 दिन बाद वाइफ की डेथ हो जाती है। तो ऑफेंस कैसे मेड आउट हुआ? ये मालूम चला कि भूख के कारण और मार दोनों की वजह से इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ हो गया है। तो ऑफेंस कैसे बना? पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। या सीधे आपने चक्कू मार दिया तो ऑफेंस कैसे बना? एक्ट से। खाना ही नहीं दिया 20 दिन तक, कुछ नहीं किया, ऑफेंस कैसे बना? इलीगल ओमिशन से। सो ऑफेंस कैसे भी बन सकता है। एक्टस रियस में हमें देखना पड़ेगा ह्यूमन कंडक्ट, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, प्लस कंसिक्वेंस क्या है उसका, उस ह्यूमन कंडक्ट का क्या कंसिक्वेंस है, राइट। अब जैसे अगर हम इसको देखें, सो एज पर सेक्शन 32 एंड 33 ऑफ द आईपीसी, एन एक्ट में बी सिंगल एक्ट or it can be the series of act or even a single omission or a series of illegal omission or a combination of series of act and series of omission। यही होता है ना, एक्ट कैन बी अ सिंगल एक्ट जिससे कि फट से वो कंसिक्वेंस हो जाए, और सीरीज ऑफ एक्ट हो, या सिंगल ओमिशन हो या सीरीज ऑफ ओमिशन हो, या कॉम्बिनेशन हो एक्ट और ओमिशन का। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये टेक्निकली जो है हर ऑफेंस का एक्टस रियस अलग होता है, हर ऑफेंस का एक्टस रियस अलग होता है। जैसे एक सेक्शन है असॉल्ट, क्या सेक्शन का नाम है? असॉल्ट। असॉल्ट में क्या होता है? असॉल्ट की अगर परिभाषा आप देखेंगे तो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 351 व्हिच टॉक्स अबाउट एनी पर्सन, इफ एक कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा जेस्चर और प्रिपरेशन करता है, इफ एनी पर्सन डज सम काइंड ऑफ जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन, ऐसा जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन करता है जिससे कि सामने वाले को ये लगता है कि ये वो जो जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन कर रहा है कहीं मुझ पे अटैक तो नहीं करेगा। ये सिर्फ अभी एक्ट नहीं होता है, लेकिन वो जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन पे ही वो ह्यूमन कंडक्ट एक ऐसा एप्रीहेंशन देता है आपके दिमाग को कि ये वो जो मुझे बंदूक दिखा रहा है कहीं मुझे गोली तो नहीं मार देगा। तो लॉ कहता है कि अगर ऐसा कोई असॉल्ट करना ऐसा असॉल्ट आपको लगता है कि आपको एप्रीहेंशन देता है कि ही हु इज शोइंग हिज पिस्टल कैन अटैक मी, सो लॉ हैज गिवन मी अ राइट टू प्रोटेक्ट माय बॉडी, राइट। असॉल्ट के ही बेसिस पे, एप्रीहेंशन के ही बेसिस पे आई हैव गॉट राइट, एंड राइट इज दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो असॉल्ट का एक्टस रियस क्या है? जैसे ही बंदूक उठाया और जैसे ही बंदूक के ट्रिगर पे उंगली रखी, द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट इज मेड आउट, क्योंकि ऑफेंस ऑफ असॉल्ट सिर्फ जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन से बनता है, और वो जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन तुम्हें लगना चाहिए कि कहीं मैम ट्रिगर दबा तो नहीं देंगी, बस उतने में ही असॉल्ट का ऑफेंस बन गया। अब तुम सेक्शन 351 की कैटेगरी में फॉल हो गई और असॉल्ट के पनिशमेंट तुम्हारे ऊपर लागू हो गया, तुमने कुछ किया या नहीं किया। और इस सेक्शन का असॉल्ट ये हो गया, सेक्शन 350 का एक्टस रियस हो गया, द मोमेंट द हैंड द फिंगर इज पुट ऑन द ट्रिगर द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट इज मेड आउट। इसका एक्टस रियस ये हो गया, जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन। अब यहीं पे अगर ट्रिगर से ए ने बी को मार दिया तो व्हाट इज एक्टस रियस? डेथ। सो ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, ये सेक्शन टू सेक्शन वेरी करेगा, लेकिन आपको जो टेस्ट अपने दिमाग में रखना है एक्टस रियस के लिए कि वो consequences of human conduct must be punishable and prohibited by the law. So actus reus basically depends upon the charge which is going to be framed by the court, that what act is you have committed, and or consequence will decide that what charge will apply upon you, what is the end result of your act, right? अब अगर आपने मेरे पे अटैक किया लेकिन मैं बच गई तो एक्टस रियस तो कर दिया आपने, अब वो क्या होगा? चार्ज किसमें फ्रेम्ड होगा? 307 में। मर गई तो 302, सिर्फ आपने उंगली रखा तो 351 में फॉल करेगा। सो एक्टस रियस विल it will vary from section to section, and it is a subjective term. So technically we have to find that it varies from section to section. For every section the actus reus is going to be different. Clear to everybody? आयुषी, आपको क्लियर है? आयुषी आपको आयुषी आपको क्लियर है? सो एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे यहाँ मेंस रिया का। देखिए मैं भी हम लोग जो क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो जो भी मैंने पढ़ाया वो मैं सब कुछ आपको लिखवाती हूँ, जो भी मैंने पढ़ाया, तो जिससे कि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो। अभी लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि आपको 3 क्लासेस करनी है, तो इसलिए लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ नहीं, मतलब आज ही आपको आपकी सिविल लॉ की भी क्लास है, आपकी जीएस की भी क्लास है, तो पर्पस
हाँ, अलग अलग टीचर। क्रिमिनल लॉ एंड फैमिली लॉ मैं पढ़ाती हूँ, सिविल लॉ डिफरेंट टीचर पढ़ाते हैं, जीएस डिफरेंट टीचर पढ़ाते हैं। See, मेंस रिया, द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द मेंस रिया। मैं ये उम्मीद करके चलती हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है? आप ब्लैंक आउट हो जाइए, जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ है उसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए, राइट? मेंस रिया, ये समझ में आया एक्टस रिया से आपको बेटा? मेंस रिया, मेंस रिया, what is mens? It is a state of mind. It is what? State of mind. What is riya? It is prohibited and punishable. Prohibited and punishable. एक नॉर्मल सी बात है, आपने अगर एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है, राइट? A child whose age is 5 years, he is a dolly incapax. He is incapable in law of committing the offence. That's you can remember section 82 which talks about dolly incapax. 82 section याद है? Act of a child who is under 7 years of age. अगर कोई बच्चा 7 साल के कम का है तो उसको कहते हैं कि वो incapable in law of committing the offence, right? And अगर वो बच्चा किसी को चाकू मार देता है, अगर वो बच्चा किसी को चाकू मार देता है तो वो एक्ट तो कर रहा है, लेकिन उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना वो प्रोहिबिटेड नहीं है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड प्रोहिबिटेड इसलिए नहीं है क्योंकि वो दैट ऑफेंस इज कमिटेड विदाउट द गिल्टी माइंड. Act has been done, but that state of he, because it is said that child is incapable of forming the intention. It is believed that the child is incapable of forming the specific intention or the knowledge. He does not have a knowledge. He is not a good judge of his own interest. So whenever an offense is committed with the mens rea, जब कभी भी कोई भी अपराध, कोई भी ह्यूमन कंडक्ट मेंस रिया के साथ होता है तो उसका पनिशमेंट हमेशा लॉ में दिया हुआ है. अगर कोई भी ऑफेंस विदाउट मेंस रिया होता है तो दैट इज नॉट पनिशेबल. यू कैन ऑलवेज कम बिफोर द कोर्ट एंड प्ली दैट आई डिड नॉट हैव एन इंटेंशन, सिंस आई वाज अ चाइल्ड ऑफ 7 years of age, I cannot form a specific intention to kill someone. So we can say that mens rea is a guilty state of mind and which accompanies a particular act. एक एक्ट हो रहा था, उसके साथ हमारा इंटेंशन भी गलत था. मैं एक्ट कर रहा था, मैं जानबूझ के मार रहा था विद गिल्टी इंटेंशन, राइट? सो व्हाट वी कैन से दैट द मेंस रिया इज द गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड व्हिच इज accompanied by the particular act when the accused was committing the offense, right? And that state of mind was declared to be punishable in the particular provision. जरूरी है ना कि वो स्टेट ऑफ माइंड पनिशेबल भी होना चाहिए. जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया कि वी हैव एन स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेंस रिया, दैट इज इंटेंशन, नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव. तो मतलब ये है कि अगर स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ या रीजन टू बिलीव के साथ कोई ऑफेंस होता है, आप एक्ट करते हैं, सो यू विल ऑलवेज बी पनिशेबल फॉर दैट एक्ट. मतलब द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया कि अगर कोई अपराध मेंस रिया के साथ होता है तो वो उसके पास पोटेंशियल होता है सोसाइटी के कॉन्साइंस को डिस्टर्ब करने का. अगर कोई जानबूझ के किसी की डेथ कॉज करता है, जानबूझ के कोई एक्ट करता है स्पेसिफिक मेंस रिया के साथ, तो सोसाइटी को समझ में आता है कि भाई दिस पर्सन हैज कमिटेड द एक्ट विद द स्पेसिफिक मेंस रिया. सो मतलब एन एक्ट विद एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड, an act with active state of mind has a societal abhorrence. अगर सोसाइटी में आप कोई भी ऑफेंस करते हैं और अपने स्टेट ऑफ माइंड के साथ करते हैं तो उस एक्ट में सोसाइटल एबहॉरेंस है, मतलब सोसाइटी उस एक्ट को हेट कर रही है और ये चाहती है कि सोसाइटी चाहती है कि अक्यूज को तुरंत उस एक्ट के लिए पनिश किया जाए. लेकिन वहीं पे अगर कोई एन एक्ट इज डन विदाउट द स्पेसिफिक मेंस रिया या एन एक्ट इज डन विदाउट द स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, that is always a societal forgiveness. क्या है? societal forgiveness. तो अगर कोई एक्ट स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड के साथ होता है तो वो सोसाइटल एबहॉरेंस होता है. क्यों? क्योंकि क्राइम इज कंसीडर्ड टू बी अ रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी. दैट एक्ट हैज गॉट अ पोटेंशियल टू शेक द सोसाइटल कॉन्साइंस. बट एट द सेम टाइम व्हेन सम एक्ट इज डन विदाउट द active state of mind, that is always had a potential of a societal forgiveness. Clear? So अब what is the purpose? अब mens rea क्या है? The requirement of mens rea is related to the essence of crime. And offense is why? Because offense is considered to be a wrong against the whole society.
As I told you, it has got a potential to shake the societal conscience, and so it is a matter of a public policy that if any act has not got a potential to shake the societal conscience, it is not a crime. But at the same time, if the act has got the potential to shake the societal conscience, it is a crime. It is not every state of mind that is punishable. Particular state of mind which is recognized by the state. हर स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, हर ऑफेंस का स्पेसिफाइड ऑफेंस का स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड होता है, और अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ऑफेंस किया है. देखिए, लगभग हर ऑफेंस के लिए आपको एक्टस रियस और मेंस रिया के साथ ही आपको देयर मस्ट बी एन मेंस रिया, then only you will be liable for anything, right? In IPC, when the specific kind of mens rea is mentioned for any offense, you have to prove that that act was committed by that specific kind of mens rea. But nevertheless, there are certain crimes which per se have a grave socio-economic effect. कुछ ऐसे crimes होते हैं जहां जिसका ग्रेव सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट होता है. ऐसे केसेस में अगर हम हर केसेस में मेंस रिया को प्रूव करने लग जाएंगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्रोविजन का या उस पर्टिकुलर कानून का पर्पस डिफीट हो जाएगा. तो कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं. ऐसे ऑफेंसेस के लिए सिर्फ एक्टस रियस आप कर दीजिए, जहां पे स्टैट्यूट साइलेंट है. आईपीसी में जहां पे प्रोविजन में, जिस पर्टिकुलर प्रोविजन में मेंस रिया का जिक्र नहीं है या मेंस रिया साइलेंट है, स्टेट ऑफ माइंड साइलेंट है, तो ऐसे केसेस में हम नेसेसरी इंप्लीकेशन के तहत ये जानने की कोशिश करते हैं क्यों लेजिस्लेचर ने यहाँ पे इंटेंशन, नॉलेज या रीजन टू बिलीव के बारे में नहीं लिखा है. लिखा है कि आप एक्ट करिए, यू विल बी लायबल. क्यों? क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि लेजिस्लेचर ने इस प्रोविजन को क्यों बनाया है, लेजिस्लेचर ने इस एक्ट को क्यों बनाया है, यही देखना होगा ना. जैसे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है, सेक्शन 361. अब ये क्या कहता है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने. इसका पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट द राइट ऑफ गार्जियंस, ऑल्सो प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग डेस्टिट्यूटेड, राइट. चाइल्ड के राइट को प्रोटेक्ट करना, गार्जियन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये कानून बनाया है. इस सेक्शन में कहीं भी मेंस रिया का जिक्र नहीं है. पार्लियामेंट इज साइलेंट अपॉन वेदर द मेंस रिया इज रिक्वायर्ड और नॉट. सो इफ सेक्शन इज इन द सेक्शन इट इज नॉट रिटन, देन देयर इज अ नॉर्मल प्रिजम्पशन. अगर किसी सेक्शन में मेंस रिया का जिक्र नहीं है, सो इट इज अ नॉर्मल प्रिजम्पशन दैट इन इंडिया दैट मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड. In India, if the particular provision में mens rea is not written, it means that it is normal presumption that mens rea is not required for that offence. But in such cases, one more point is to be seen. अगर किसी भी एक्ट में मेंस रिया नहीं लिखा है तो नॉर्मल प्रिजम्पशन क्या है? मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूफ. बट इन सच केसेस वी हैव टू सी दैट अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन. ऐसे केसेस में अगर नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि टेस्ट ऑफ नेसेसरी इम्प्लीकेशन. इफ मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, देन वी हैव सीन दैट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विल अराइज. सो द कोर्ट विल go and see that test of necessary implication. Test of necessary implication. भाई आपने कहा, मैंने कहा कि भाई अगर स्टैट्यूट साइलेंट है मेंस रिया के पॉइंट पे तो ये नॉर्मल प्रिजम्पशन है कि उस ऑफेंस के लिए मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड. क्लियर? सो नाउ which means that the offense is of such category which creates a strict liability. So now the court will go and see the first the test of necessary implication. What is necessary implication? What is the purpose of the statute? उस statute का क्या purpose है, क्यों बनाया गया है, या उस प्रोविजन का क्या पर्पस है. अगर मैंने एग्जांपल आपको दिया 361 का, तो 361 का क्या पर्पस है? अगर आप मेंस रिया इंपॉर्टेंट नेसेसरी कर देंगे प्रूफ करना, तो हर व्यक्ति जो एक बच्चे को, जो लड़की है जिसकी उम्र 18 साल है और लड़का उसकी उम्र 16 साल है, अगर वो उसको उसके गार्जियनशिप की कस्टडी से लेके जाता है और कल को पकड़ा जाता है तो कह देगा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था. तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हमने ये प्रोविजन आईपीसी में डाला ही क्यों, या हमने ये कोई कानून बनाया ही क्यों. जैसे मैंने आपको बताया FERA, Foreign Exchange Regulation Act. FERA is basically, what is the purpose of the FERA? To stop smuggling and also to stop and prevent any kind of a smuggling act.
अब ऐसे केसेस में आप आके कह देंगे कि जी मेरा तो इंटेंशन ही नहीं था, मैं तो गोल्ड, मुझे तो मालूम ही नहीं था कानून, मैं तो सोना अपनी बॉडी पे पहन के चल रहा था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप स्मगलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाई मेंस रिया नहीं लिखा जी, मेरा इंटेंशन नहीं था, आई डिड द एक्ट बट विदाउट द इंटेंशन, देन कोर्ट विल सी दैट मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड because it is creating a strict liability. Then court will also go and see the test of necessary implication. And test of necessary implication ka the first rule is that what is the purpose of this statute or particular provision. It has to be also examined that if you made the mens rea essentially to be proved. अगर आपको फिर देखना पड़ेगा कि अगर आपने ऐसे प्रोविजन में मेंस रिया को प्रूव करने को, एसेंशियली आपने मेंस रिया को कह दिया जी प्रूव करना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने मेंस रिया की रिक्वायरमेंट को प्रूव करने के लिए अलाउ कर दिया तो क्या वो पर्पस को सर्व करेगा या डिफीट करेगा। अब 361 के केस में कर दीजिए। अब कोर्ट ने कहा जी अगर हम कह देंगे कि नहीं ठीक है आप मेंस रिया प्रूव करिए कि भाई आपने बिना इंटेंशन के साथ, बिना नॉलेज या बिना रीजन टू बिलीव के साथ किया है, तो क्या ये 361 के पर्पस को सर्व करेगा या डिफीट करेगा? डिफीट करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो बच्चे को किडनैप करके लॉफुल गार्जियनशिप से ले जाएगा और कह देगा, प्रूव कर देगा कि मेरा इंटेंशन ही था, मैं तो इसको मिठाई दिलाने के लिए ले गया था लड़की को, राइट। सो इफ द पर्पस इज डिफीटिंग, if the purpose is defeating, that means that creates the liability, and that liability is a strict liability. Clear? So that was a test of a necessary implication. Clear? So this is the way we teach and we make you understand each and everything. After if your class is for daily, your class will be for 5 to 6 hours. In which every subject, 3 subjects चलते हैं एक साथ, मेजर लॉ, माइनर लॉ और जीएस। तो हर क्लासेस आपकी 2-2 घंटे, पौने 2-2 घंटे की होती हैं। फर्स्ट हाफ में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 1.5 घंटे, सवा घंटे की क्लास में आपको पहले सब कुछ समझा दिया जाए। हम लोग विश्वास नहीं करते आपको मगअप कराने के लिए, हमारा बहुत ही प्रोग्रेसिव वे होता है टीचिंग का। वी गिव यू ऑल लैंडमार्क जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट, वी गिव यू द बुलेट नोट्स। बुलेट नोट इज बेसिकली फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम। वी गिव यू शॉर्ट नोट्स, जो जैसे राजस्थान जुडिशरी में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। प्लस हम आपको, हमारी कॉपी इतनी सफिशिएंट होती है कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, आप मगअप कर रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। मगअपिंग नहीं करना। हम आपको प्रीलिम्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी से पढ़ाते हैं, मेंस के लिए अलग स्ट्रैटेजी से पढ़ाते हैं। जो हमारा तरीका है पढ़ाने का वो मेंस कम प्री है, इट इज नेवर कम प्री कम मेंस। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं और अचानक से कोई वैकेंसी आ गई, तो हम लोग आपको फिर क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी यूएसपी है। हमारी यूएसपी है कि मान लीजिए आपकी कोचिंग आज शुरू हुई और 10 महीना भर बाद एक वैकेंसी आ जाती है जिसमें कि आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं, रिगरस क्रैश कोर्स। आपके क्लास के अलावा आपको 10 घंटे हम अपने क्लासरूम में बिठाते हैं विद ऑल फूड एंड एवरीथिंग, कि हम आपको तैयार करते हैं उस एग्जाम के लिए। दैट इज माई यूएसपी विच आई फोकस अपॉन माई स्टूडेंट्स। आई होप यू आर लाइक द क्लास, and next class is after 5 minutes that you will have a CPC class. You'll have to again join, if you are watching the class live, you have to again join the class after 5 minutes. समझ में नहीं करिए, कॉलेज में तो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना, हाँ ऐसा है कि नहीं?